talking about the Ram temple, has the Pran Pratishtha yesterday and the ensuing Ram Leher now guaranteed that the BJP can actually go past its stated aim of 400 par in the elections this year? We are not just saying this flippantly, because today on India Upfront, we will start by examining the entire Ram Mandir Pran Pratishtha, how it was planned and executed, how its message was consciously one of unity and outreach, irrespective of class and community, and how this outreach could translate electorally. Let's start by actually looking at what the Prime Minister said today while replying to President Draupadi Murmu's letter on his Anushthan. Thanking her, the Prime Minister said that his Ayodhya visit was like a Tirth Yatra, and that not only do Indians worship Lord Ram, but also take inspiration from his ideals and values for their own life. He goes on to say that Lord Ram gave the message of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas in every stage of his life. So the message of the government was actually equated with the message of Lord Ram himself. This is the learning, the Prime Minister wrote in his letter, that will guide his government to ensure a developed India by 2047. This is, by the way, exactly what Mr. Modi also said in his speech yesterday, soon after the Pran Pratishtha, that Lord Ram is not to divide. The temple is not to divide between caste and community, but actually to unite all of India. ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमानी नहीं, राम अनंत काल है। And unite it did. Take a look simply at how the Ram Mandir was celebrated across India all of yesterday, and that celebration continued today as well. From Parsis to members of the Muslim community, to tribals, backwards, OBCs, you name it. The Ram Mandir was the one thing that not only had people of all hues and community rejoicing in Ayodhya and across India, but special effort was made to ensure that every community actually found representation in the ritual itself. That the Pran Pratishtha was not about one party or a person or a community or a caste or a religion. Let's take a look simply at how the 15 Yajmans for the Pran Pratishtha were chosen. This list includes at least 3 members of a scheduled caste community, 2 from tribal communities, and 2 from OBC communities. Actually, that's the exact opposite of what you've been told so far. That this is only a Manuvad Pran Pratishtha. That the temple is only about Manuvad, about Brahminical patriarchy, if you will.
Tribals were represented, backwards were represented. Sitting alongside the Prime Minister, who was the Mukhya Yajman for yesterday during the Pran Pratishtha, was the Dome Raja of Varanasi. This backward community of Domes is known famously for lighting the funeral pyres at the Manikarnika and Harish Chandra Ghats in Kashi. Also invited was Ramkui Jemi, a member of the Naga community from Assam, Lingayat leader Vasavaraj Appa from Kalaburgi in Karnataka, Krishna Mohan from the Ravidasi Samaj from Hardoi in Uttar Pradesh, and Dilip Valmiki from Lucknow. The other Yajmans were Kailash Yadav and his wife Shobha. They shared pride of place during the Pran Pratishtha. On the other hand, now let's take a look at what has been the opposition's response over the last 48 hours. From Mamata Banerjee, who invoked the word kafir, ironically in an all-faith rally that she led yesterday, to those who called it a symbol of Manuvad. To believe it or not, even the Shiv Sena, who today said that India is taking a turn towards fanaticism, a fanaticism of the kind that one sees in Iran, and Modi has turned into the Ayatollah, with everyone being forced to chant his name. जो इन लोग प्रोग्राम करते हैं, सबको बुलाते हैं, तो आज ये मिছিল करने का हमारा यही मैसेज है। अच्छा से कान दिल से सुन लो, हम दिल का बात कह रहा हूं। ये लड़ाई शुरू हुआ है, ये लड़ाई चलते रहेंगे। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। हमारे पास हिम्मत है लड़ने के लिए, लेकिन हमको लड़ने नहीं देता है लोग। आज तो हम रैली निकाला इसी के लिए, हमने हिम्मत दिखाया। कितना पॉलिटिकल पार्टियां है, क्या हिम्मत दिखाया? एक मंदिर विजिट करने से हो गया? तो हम क्या करते हैं? वो जो बोलता है हम भी वो करते हैं। हम तो मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारा गया, गिरजा गया, मजार गया, हर धर्म को लेके गया। And so that brings us to the big question. Will the Mandir message and the way in which the entire Pran Pratishtha was conducted actually manage to unite the entire Hindu vote? And will a united Hindu vote actually translate into the 400 Par that the BJP has been talking about? And if indeed the Ram Mandir is sending out a message of unity, then why is divisive rhetoric about kafirs and Ayatollah being inserted by some political parties? Why are kafirs being invoked in a rally that was meant to be about unity? And has the Mandir social engineering become a formula that is going to be a formula for the win? Joining us now, Shalabh Mani Tripathi, MLA and spokesperson of the BJP, Sameer Chowgankar, senior journalist, Sanjay Jha, author, Manoj Yadav, national spokesperson of the Samajwadi Party, and Dr. Shantanu Sen, MP and national spokesperson of the TMC. But I want to first start with Sameer Chowgankar, the non-political voice. Sameer ji, the most interesting thing today was जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को, उसमें उन्होंने अपनी जो सरकार का नारा है वो एक्चुअली एक तरीके से बोल दिया है कि ये खुद प्रभु श्री राम का ही नारा है। सो द टू हैव बीन इक्वेटेड, कि जो इस सरकार का मोटो है वो खुद प्रभु श्री राम का संदेश है। बिल्कुल पद्मराज, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 से लेके देश का कार्यभार संभाला है, आज 9 साल हो गए। और 9 साल का अंदर प्रधानमंत्री का कार्य बताता है कि वह राम राज्य लाने की दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अपने इस उद्देश्य के अंदर सफल हो रहे हैं। और यही कारण रहा कि 2014 के बाद 2019 में 303 सीटों का बहुमत मिलता है
और तीसरी बार यह तय है कि प्रधानमंत्री की वापसी होने जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कल प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बाद शाम को दिल्ली में आते ही 1 करोड़ लोगों के यहाँ सोलर सिस्टम लगाने की घोषणा कर दी। अभी कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट का जब सेशन हुआ था, उसी पार्लियामेंट सेशन में केंद्र सरकार ने बताया था कि आज की तारीख के अंदर 72% घरों के अंदर पानी दिया जा रहा है और 11 करोड़ महिलाओं को पानी, पीने का पानी ढोने की व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की आप योजनाएं देखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी वर्ग के लिए काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने। और सबका साथ सबका विकास की जो प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं, और आज सभी वर्गों के लिए प्रधानमंत्री की योजना है। कोई ऐसी एक योजना नहीं है जो किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक धर्म के प्रति हो। यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में 303 का सीटों का समर्थन मिला है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह टारगेट सेट करते हैं कि 2024 के चुनाव में 50% वोट बैंक और 400 सीटें अचीव करना है, तो यह असंभव नहीं लगता, यह संभव लग रहा है। और आज की तारीख में अगर देश में चुनाव होते पद्मजा जी, तो यह तय मानिए कि प्रधानमंत्री मोदी 350 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं और 45% से ज्यादा वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लेने की स्थिति में आ गई है। Okay, so let me take this to Dr. Shantanu Sen. Is that the reason why that if a united Hindu vote through the Pran Pratishtha is posing a challenge, Dr. Shantanu Sen, words like kafir are being invoked in a unity rally? Why would anyone say कि kafir कायर हैं, वो लड़ते नहीं हैं? Who are these kafirs that were referred to in a unity rally? I would like to answer your question in 2 parts. Number one, I would like to remind you on 6th of December 1992, on the very day of Babri Masjid demolition, no other leader was found on the road, but it's only Madam Mamata Banerjee along with Mother Teresa. These two ladies were on the road carrying the message of communal harmony. And once again, when yesterday BJP was playing the religion card in the dirtiest possible way, I would like to remind you that the Hindu Pandits, they are crying in Kashmir. Once again, Mamata Banerjee was there on the road yesterday along with the representatives of other religions carrying the message of dovetailing of religion and communal harmony. Number one. Number two, in response to my BJP colleague, I would like to let you know, I would like to remind you rather, in 2014, BJP faced the election with some false promises like... Sir, kafir. My question is about kafir. Why was the word kafir used? If you want to comment on a particular speech, you have to go through the entire speech. You cannot interrupt me. You are asking me a question, let me answer. I did actually. If you like, we shall play out what the chief minister said again. She said कि काफिर नहीं लड़ते हैं. What was that about? I have got every right to answer my BJP colleague. That was a journalist. Sameer Chowgankar is not from the BJP at all. He wasn't making a political point. I am asking you a direct question. Why was the word kafir invoked? He is a journalist with strong BJP feeling in his mind. Everybody knows it. Fine. Leave it aside. Now, in 2014, BJP faced the election with some false promises. The promises which proved to be false later on. In 2019, they changed the narrative. They played the card of pseudo-nationalism. It's not me. It's Satyapal Malik who has clarified later on. Now, as they are far away from the development, the entire country is burning. Now they are in a mood to face the election, playing this religion card. Sir, I am asking you a simple question and a direct question. Let me quote for your benefit again, because I have read the transcript that was given of the Chief Minister's speech, and now I am quoting to you verbatim what she said. हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं. जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं. जो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं. Who are these kafirs that were being referred to? He wanted to mean the cowards cannot fight, and those who fight, they win finally. You are going to the transcription, and I was physically present in that particular rally where our Madam Chief Minister has categorically said this. So was the word kafir used or not used? You just cannot misquote or misinterpret what she has said. No, I don't want to misquote at all. So for the benefit of our viewers, I am quoting verbatim. I will play again exactly what the Chief Minister said. Come on. Because no, sir. As you are in the driving chair, you are overpowering me. No, sir. I do not want anything misrepresented. It's a very sensitive comment to have made. So let's listen to the Chief Minister again for absolute clarity. Let's listen again. 10 seconds, sir. Let's listen again.
जो इन लोग प्रोग्राम करते हैं सबको बुलाते हैं। तो आज ये मिছিল करने का हमारा यही मैसेज है। अच्छा से कान दिल से सुन लो, हम दिल का बात कह रहा हूं। ये लड़ाई शुरू हुआ है, ये लड़ाई चलते रहेंगे। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। जो लड़ते हैं, जो काफिर हैं, कापुरुष हैं, वो लड़ते नहीं हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। Who are these kafirs? She wanted to mean those who are cowards, they are scared of fighting and they do not fight and they get defeated finally. Those who have got the guts to fight and finally they win. That's what she has meant. You just do not try to misquote her saying. Okay, I played it verbatim. Shalabh Mani Tripathi, your party has latched on to the word kafir. West Bengal and elsewhere they have said कि ममता बनर्जी जानबूझ के काफिर वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं। डॉक्टर शांतनु सेन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेज वो सिर्फ कावर्ड्स की बात कर रही थी, उनका और कोई मतलब नहीं था। आप उसको ट्विस्ट क्यों कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और आपने देखा, आपने 2 बार मुझे लगता है पूरा का पूरा उनका भाषण सुनाया और उसमें स्पष्ट तौर पे आप देखिए वो किन किन शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। कई बार तो मैं अगर सुन रहा था तो मुझे कई बार लगा कि कोई चरमपंथी संगठन से कोई बोल रहा है क्या। ममता बनर्जी जी जो कि एक चीफ मिनिस्टर है, वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रही हैं और ये बौखलाहट किस बात की है? मुझे लगता है वो शायद कांग्रेस के लोगों को कहना चाह रही हैं। हो सकता है कि जो इंडी गठबंधन के जो बाकी लोग हैं उनसे खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही हो कि नहीं साहब, आप लोग तो कापुरुष हैं। कापुरुष का मतलब तो पद्मजा जी आप जानती होंगी, कापुरुष का मतलब होता है कायर, यानी जो लड़ पाने की जिसकी शक्ति नहीं होती है। तो वो किसको, अखिलेश जी को बोल रही हैं, राहुल जी को बोल रही हैं, किसको बोल रही हैं? मुझे लगता है कि ये इंडी गठबंधन के भीतर भी वो कह सकती हैं। और दूसरा कि ये जो बौखलाहट इस स्तर की, आप देखिए कि इस प्रकार के शब्द एक चीफ मिनिस्टर, जो कि चुनी हुई चीफ मिनिस्टर, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी जुबान से इस प्रकार के शब्द निकलना और ऐसे वक्त में कि जब पूरा देश उल्लास में डूबा हो, पूरा देश उमंग में डूबा हो। आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी को एक लेटर लिखा है। मैं सिर्फ आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग कई बार उत्तर प्रदेश में जब काम करने निकलते थे फील्ड में, हम लोगों ने देखा और उस पर बाद में फिल्म भी बनी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। पद्मजा जी आपने भी देखी होगी। इस देश की विडंबना देखिए कि इस देश की आजादी के 7 दशक बाद इस देश में फिल्म बनी टॉयलेट एक प्रेम कथा, और जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से माताएं, बहनें, लड़कियां जो स्टूडेंट्स होती थी वो सुबह सुबह लाइन लगाकर जाती थी बाहर जाके टॉयलेट के लिए और सड़क के किनारे जाके, रेल पटरी किनारे जाकर बैठती थी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके घर में टॉयलेट है, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये परिवर्तन किसने किया? ये प्रधानमंत्री जी ने किया। यही तो है राम राज्य कि आज किसी को चूल्हा फूकने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि घर में उज्ज्वला का कनेक्शन है। किसी को अपना घर बार बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती इलाज कराने के लिए। क्यों? क्योंकि 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान का बीमा है। तो राम राज्य तो यही है। उस राम राज्य के उल्लास में, उमंग में जब पूरे 140 करोड़ देश के लोग डूबे हो, तो ऐसे में कुछ लोगों की बौखलाहट समझ में आती है और वही बौखलाहट ममता जी को दिख रही है, वही बौखलाहट कांग्रेस के भीतर दिख रही है और ये बौखलाहट बढ़ेगी क्योंकि अब की बार 400 पार है। आप देखिएगा जिस प्रकार से देश के जनमानस ने मन बनाया है, अब की बार 400 पार। Okay, does it seem strange that on the one hand, at the Pran Pratishtha itself, Dr. Shantanu Sen, you have a Valmiki, you have a Dalit, you have a Ghumantu, you have a tribal, you have a Naga, you have an OBC, you have a Yadav, and on the other hand, the reply to that is talking about kafirs. Who's dividing? Who's giving the divisive message here, Dr. Shantanu Sen? Everyone knows in the country which party plays the divisive politics. It's none other than Bharatiya Janata Party. My dear BJP colleague was talking about development. India is ranking 111 out of 121 countries so far the global hunger index is concerned. We are facing highest unemployment in last 45 years. Inflation is highest. People are dying. The kitchens of the common people, they are burning. There is tremendous price hikes so far the price of the essential commodities are concerned. India is facing to the worst possible 2 state. weeks ago, there is data, a report shows that 25 crore people have been brought out of poverty.
25 crore people. But I am simply talking to you about the optics here. The optics are very clear on the one hand, that you have got people across caste and community. You have an Iqbal Ansari Sanjay Jha on the one hand, who is sitting in the Ram Mandir. You have the Imam Council chief sitting in the Ram Mandir. And we are talking about kafirs with an Iqbal Ansari sitting in the Ram Mandir. Mr. Jha, you're muted. Please unmute yourself. Padmaja, I'll answer you very quickly. I hope I'm not interrupted because I think this is an important debate. Number one, since you mentioned some economics, let me tell you the truth. And the gentleman from the BJP should know कि हमारे जो युवा है ना, जो 25 साल से कम जिनका जो आयु है, उसमें 42% लोग बेरोजगार हैं। भैया, आप हमारे जो युवा जो पीढ़ी है, उनका भविष्य आपने अंधकार में डुबा दिया है। जरा यहाँ आकर भाषण देने से पहले जरा आंकड़ों को पढ़ के आइएगा। दूसरा, जब फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं ना, तो 7.5% से ज्यादा है। गरीबों के बारे में सोचिए, एक सिलेंडर दे के आप किसी पर कोई आभारी नहीं हो जाएगा आपका। आप अदानी को के लिए क्या किए वो भी दुनिया जानती है। बट लेट मी आंसर योर क्वेश्चन, पद्मजा। You know, it is Mr. Modi writes a letter to President of India. But I would have expected the President of India in a religious function to be the chief guest, the head of state, the commander-in-chief, not invited. I mean, that to me is like absolutely astonishing. Number two, this is the same government. The Congress party says कि यार आप लोग तो उसको एक राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, हम आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगे, हम मंदिर तो हम जरूर जाएंगे, क्यों नहीं, सब जाएंगे। You know, I have to just pause you for a second because it was said earlier that the president's absence is an insult to tribals. Do you know that a member of the Ghumantu Samaj was present there? That there was a member of the Naga community who was present there. And these are not the heads of state. These are common people who find representation on a day when most of us would be dying to be present there in the Garbhagriha. These people sat there. Yeah, Padmaja, I requested you not to interrupt me. I've just come in a little late in the Yes, program. go on. Let me make my point. The point I'm saying is, एक दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया में एक पोस्टर निकालती है कि इंडिया अलायंस के जितने नेता लोग हैं वो सनातन के विरुद्ध हैं। भाई साहब, जरा शंकर आचार्य ने आपके बारे में क्या कहा, जरा उसके बारे में भी सुनिए और शर्म से डूब जाइए आप। सर, आपने न्यूज अपडेट चेक नहीं किया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आप जैसे लोगों को अटैक करते हुए बोला है कि कुछ लोगों का काम ही है उनको एंटी मोदी प्रोजेक्ट करना। शंकराचार्य आप जैसे लोगों को अटैक कर रहे हैं। सो वी मस्ट डू अ क्विक न्यूज अपडेट ऑन दैट। मेरी बात तो सुनिए। हाँ। आई ऑल्सो, इट्स ऑन रिकॉर्ड। जो भी दर्शक है इस प्रोग्राम के, उनको मैं गुजारिश करूंगा जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाए तो आप जरा गूगल कर लें और देख लें उन्होंने क्या कहा। कि देखिए, धर्म शास्त्र जो हमारे सनातन धर्म का उन्होंने उल्लंघन किया और उन्होंने ये भी कहा कि जो मंदिर अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं है, पूरा नहीं हुआ है, चलिए वहां पर एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा सर, मंदिर हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। शंकराचार्य जी also have done a rethink. We are still stuck like a record over there. Sir, just a second, because this is unnecessarily repetitive of something that has already happened. Quickly respond, Shalabh Mani Tripathi, but I want to walk across and show you some data, because when we are talking about, Shalabh Mani Tripathi, please go on. When we are talking about why we are saying that this is a coalition through the Mandir message, I will explain that to you just through the representation of the people who were there at the Pran Pratishtha. But first answer, Shalabh Mani Tripathi. पद्मजा जी, मैं कांग्रेस पार्टी के साथी को सुन रहा था, कह रहे थे कि बेरोजगारी, ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो सारे लोग कलेक्टर थे, जो बचे थे बाकी डिप्टी कलेक्टर हो गए थे। अरे साहब, एक ही युवा का भविष्य बर्बाद हुआ है और वो है आपका नायक राहुल गांधी, जो अमेठी से भी चुनाव हार गया, जिसको तश्तरी में प्लेट रख के सरकार आपने सीट दी थी। और आप कहते हैं शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए कि आपने भगवान राम को काल्पनिक कहा। शर्म आपको आनी चाहिए कि आपने सनातन को डेंगू कहा। शर्म और चुल्लू पर पानी में आपको डूब मरना चाहिए कि आपने कहा कि एड्स है सनातन। आपने भगवान राम को काल्पनिक कहा, इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए और चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कांग्रेस के लोगों को, जो सनातन पर अटैक करते हैं, जो हिंदुत्व पर अटैक करते हैं। और देश की जनता ने आपको आपकी हैसियत बता दी। आपके नायक राहुल गांधी अमेठी से ऐसा चुनाव हारे कि भाग के वायनाड जाना पड़ा। और आपकी दुनिया जानती है, भारत की आवाम बहुत जागरूक और समझदार है।
देश ने आपको वही जवाब दिया। आप सनातन को गाली देते हैं, आप सनातन को डेंगू मलेरिया बोलते हैं, आप सनातन को नष्ट करने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि राम मंदिर का मुकदमा नहीं सलटना चाहिए, मुकदमे का फैसला नहीं आना चाहिए। हम तो कहते हैं राम सबके थे, लेकिन राम के खिलाफ जो 36 वकील खड़े हुए वो किसके थे? वो कांग्रेस पार्टी के थे, जो रामलला को झूठा बताते थे, जो रामलला को काल्पनिक बताते थे। शर्म आनी चाहिए और चुनाव पानी ढूंढना चाहिए कांग्रेस को। Okay, that is all in the past. You know, you are absolutely right, Sanjay Jha. People of this country are very smart, which is why people of this country, despite being told that Sanatan is virus and poison by Swami Prasad Maurya to the DMK, still turned up yesterday, and 3 lakh people turned up today for darshan. 3 lakh people. Are you telling me these are people who think that Sanatan is dengue and malaria and Lord Ram is a symbol of Manuvad? 3 lakh people. Let's take a look at just those who found representation and how this is an electoral calculation as well. The Yajmans in Pran Pratishtha from the scheduled caste were Doms, Ravidasi, Valmiki, and the total population in the country is 16.6% of people from the scheduled caste. From the scheduled tribe, you had people from the Naga community, you had people from the Ghumantu community, and the tribal population in our country is 8.6%. And you also had the Yadav's representation there as the Yajman, and that is 14.26% in Bihar, the Yadav population, and 19.4% in Uttar Pradesh. And we have big news coming in right now. It's almost as if Manoj Yadav ji, the pain doesn't stop. Dukh khatam hi nahi hote hain. Karpuri Thakur, the Jannayak of Bihar, has been given the Bharat Ratna. That's the big news coming in at this moment. Manoj Yadav, your first reaction at a time when you're talking about caste census, जिन्होंने सबसे पहले कास्ट सेंसस की बात की थी, जिन्होंने कास्ट रिजर्वेशन की बात की थी, बिहार के जननायक सोशलिस्ट लीडर कर्पूरी ठाकुर इज गोइंग टू बी गिवन द भारत रत्न। मनोज यादव, कौन यूनाइट कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल पद्मजा जी, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। पिछड़े समाज के बिहार के मुख्यमंत्री थे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके चैनल में बैठे समीर पत्रकार जी का जवाब जरूर देना चाहूंगा, फिर आपके सवालों का और डिबेट में महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो चर्चा हुई उस पे बात करना चाहूंगा। समीर जी को पत्रकारिता का सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। पता नहीं क्यों रवीश कुमार को विश्व की पत्रकारिता ने दे दिया, क्योंकि कितना अच्छा विश्लेषण मोदी जी का करते हैं। कह देंगे, आप ही के चैनल से कह रहा हूं, मोदी जी इनको अच्छा वाला पुरस्कार दिला दो। कितनी अच्छी अच्छी बातें करी, 350 सीटें जीत जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे, फिर वो पर्सनल अटैक करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना? मुद्दा ही तो है इस डिबेट में। क्या अब तक नहीं, क्या इस डिबेट में समीर ने जो बात कही वो मुद्दे की बात नहीं थी क्या? वो भी वही तो मुद्दा है, वही तो एजेंडा है, और उस एजेंडे को एक्सपोज करना हमारा काम है। वो मनोज यादव की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। हाँ, इलेक्शन नहीं देखिए, अब अगर पद्मजा जी सलम मणि के लिए बिल्कुल आराम से मैदान दे देंगी उनको खेलने के लिए, और मनोज यादव के लिए हर एक 15 सेकंड में टोकेंगी, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मेरे बैठने का कोई मतलब रहेगा। मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब ले लीजिए। अगर अच्छी बात नहीं लगेगी तो टोक दीजिएगा। बोलिए, बट मुद्दे पे, समीर चौगांकर पे नहीं। क्या इस आप मुद्दे पे आपने इस पूरी डिबेट में सबसे ज्यादा इस बात का जिक्र किया कि जो यजमान थे वो इस समुदाय, इस संप्रदाय के लोग आए। मैं खुश हूं इस बात से, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन फोटो में कोई नहीं दिखा। फोटो में कंगना रनावत दिख रही थी और खूब कस के दिख रही थी, नाचते हुए दिख रही थी। सोनू निगम दिख रहे थे और कैलाश खेर दिख रहे थे, वो सचिन तेंदुलकर दिख रहे थे। वहां मुझे किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति कैमरे में नहीं दिखा। मोदी की लिस्ट में रहा होगा, उसके लिए मोदी को धन्यवाद। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया था कि पीएमओ में कब लोग जाएंगे? 3 पिछड़े हैं सिर्फ, बाकी लोग क्यों नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं है? हाई कोर्ट में क्यों नहीं है? तमाम सारी जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, उसमें वीसी क्यों नहीं है? इस समुदाय के लोग क्यों नहीं है? वो रैदासी समाज हो, चाहे रविदासी समाज हो, या यादव समाज हो, या कोई और कमेटी हो, या आदिवासी समाज हो, उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? मंदिर के यजमान बनने से क्या भला हो जाएगा?
क्या भला हो जाएगा? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। कमाल है, और अगर इतने बीजेपी महीनों के से लोग प्रवक्ता के पूछ पास रहे थे इसका कि किसी जवाब हो तो दलित बता को देना। मंदिर में क्यों अगर नहीं जाने है, देते? तो मेरे आप आरोप दलित प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो कह रहे हैं वहां जाने से क्या हो जाएगा? जब जान नहीं गए तो भी प्रॉब्लम, कर रहा था? जा नरेंद्र रहे मोदी कर तो रहे कह रहे थे। इसका क्या फायदा है? चलिए समीर जी, नरेंद्र आप मोदी रिस्पॉन्ड प्राण कीजिए प्रतिष्ठा कर रहे थे, कि प्रधानमंत्री, कैमरा कोई उनके नहीं और ऊपर कर क्यों रहा नहीं था? था। अब कैमरा एंगल्स भी आप डिसाइड करिए ट्विटर पे एक पोल लेके। समीर जी। पद्मजा जी, ये मनोज यादव जी जो बोल रहे हैं ना, ये दृष्टि दोष कहलाता है। क्या देखना है और क्या देखना चाहिए वो दिखता नहीं है। वैसे ही ये राजनीति करते हैं, इनकी समस्या यही है। यादव परिवार को सिर्फ अखिलेश यादव दिखता है, सिर्फ राम गोपाल इनके यादव दिखते हैं, शिवपाल यादव दिखते हैं, धर्मेंद्र यादव दिखते हैं, डिंपल यादव दिखती है, यही परिवार दिखता है। और बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती परिवार दिखती है। यादव का मतलब इनके लिए यादव परिवार की राजनीति है, उनकी उन्नति है, उन्हें राज्यसभा भेजना है, उन्हें ही मंत्री बनाना है, उन्हें ही सांसद बनाना है। तो इनके लिए जो परिवारवाद राजनीति का रहा है, यादववाद का, वही इन्हें बाकी जगह नजर आ रहा है। उन्हें वहां पिछड़े लोग नहीं दिखेंगे, वहां उन्हें ओबीसी नजर नहीं आएंगे, वहां उन्हें नागा नजर नहीं आएंगे, वहां उन्हें SC ST लोग नजर नहीं आएंगे। यही इनकी समस्या है। इनकी राजनीति इसीलिए खत्म होती जा रही है और यही कारण रहा। कौन नहीं नजर आएगा? 111 विधायक हैं, कैसे पत्रकार बन गए? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी क्या? कैसे पत्रकारिता करते हो? 111 विधायक हैं, रामपुर सीट आ गई, 3 सांसद हैं, राजनीति वहीं तक सीमित राज्यसभा में हो हमारे चुकी है। जो मेंबर हैं और उनकी संख्या कौन सी है? उत्तर प्रदेश की वो सारे एक ही घर के हैं क्या? 3 सांसद पर आपका लेके आ गई दोष है आपकी लालू आंखों में, प्रसाद का खाता और नहीं कानों खुला में भी बिहार आपको के सुमन अंदर। दोष हो चुका है। आने वाले चुनाव कान में भी नहीं सुनाई इन्हें जनता पड़ता है कि सबक सिखाने आपको वाली है। सही ये इस सुनने बात की को भी जानते हैं आदत हो। और जनता सब देख रही है। आज इनके हाथ से तुम्हें तो अभी यादव सबक सिखा बेल्ट देंगे। चला गया है। जब इनके हाथ जनता से सिखाएगी चले तब गए। सिखाएगी। और यही हम कारण है कि एक्सपोज किए आज दे रहे हैं, पीढ़ियों की आपको जो सबक जिक्र सिखा कर रहे रहे हैं। हैं, मनोज जी, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि कैलाश यादव और शोभा यादव आपको कैमरे पे नहीं दिखे होंगे। आज इंडियन एक्सप्रेस में उनकी बड़ी बड़ी तस्वीर छपी है। यजमान थे वो मोदी जी के 2 फीट दूर पे बैठे हुए थे। गर्भगृह में हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। शोभा यादव, कैलाश यादव वहां पर यजमान बन करके उपस्थित थे। आपको तो खुश होना चाहिए। ये कौन सी बड़ी अचीवमेंट है? ये नहीं कौन है। सा बड़ा अचीवमेंट है? चलिए जी। ये कौन सा अचीवमेंट है? नौकरी मिल गई क्या पीएमओ में? कौन सा अचीवमेंट है? गर्भगृह में चले गए तो कौन सा अचीवमेंट है? ये तो यादव लोग तो काशी विश्वनाथ में पहला जल ही चढ़ाते हैं। परिवार के लोगों को सांसद ये बना कौन दो। सी बड़ी बात हो गई परिवार भाई? के लोगों को राज्यसभा ये क्या भेज दो। नरेंद्र मोदी ने कोई अतिरिक्त कार्य कर दिया क्या? लोगों को सारी सीटें दे दो आप। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं वो आर्थिक रूप से कब संपन्न होंगे, राजनीतिक रूप से कब सशक्त होंगे, कब क्षमता उनके अंदर आएगी? बताइए, शलम मनी यजमान त्रिपाठी, बना देने से क्या भला हो जाएगा? कौन भाई? सा एहसान कर भाई दिया? यही तो पूछ इससे रहा हूं। नौकरी थोड़ा ना इसका मिल जवाब जाएगी। तो दो हमको। बहुत अच्छी बात है पद्मजा जी, आपने देखा कि चित्त भी मेरी पट्ट भी अरे मेरी। रावण की तरह मनोज जी क्यों हंस रहे हो भाई? मनोज जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे तर्क रखते हैं। लेकिन देखिए कुछ देर पहले 2-4 डिबेट पहले मिलते थे, 1-2 महीने पहले तो कहते थे कि कब भेजोगे उनको मंदिर में, मंदिर भेज देंगे उनको, मंदिर जाने की इजाजत कब मिलेगी? आपने जैसे ही बताया और तस्वीर तो आपने दिखाई, मेरे पास भी मोबाइल में तस्वीर है। जो डोम राजा का परिवार है पद्मजा जी, डोम राजा का परिवार बाकायदे देखिए त्रिशूल लेके, मैं मोबाइल से दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिए त्रिशूल लेके देखिए अयोध्या में तस्वीर आ रही है, डोम राजा का परिवार। और ये डोम राजा का परिवार कौन है? प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़ने गए बनारस में, काशी में, तो बोले कि हम प्रस्तावक बनना चाहते हैं। प्रस्तावक कौन होता है? प्रस्तावक राजनीति में मनोज जी जानते होंगे, प्रस्तावक वो होता है जो चाहता है कि आप चुनाव जीतिए, हम आपके साथ लगना चाहते हैं। तो डोम राजा का परिवार प्रस्तावक बना। बिस्मिल्लाह खां उनका परिवार मोदी जी का प्रस्तावक बनकर आया। इस प्रकार के लोग, और कौन भूल सकता है कि मोदी जी जब गए कुंभ का स्नान करने, आप जानती हैं पद्मजा जी कितना पवित्र स्नान है, मनोज जी भी जानते होंगे, ये आप बोलेंगे नहीं क्योंकि पॉलिटिकल मजबूरी है, मुझे पता है कि इनकी भी हिंदू आस्था है, सनातन आस्था है। कितना पवित्रतम स्नान होता है कुंभ का स्नान। हम लोग कुंभ का स्नान करने जाते हैं तो जाके कुंभ का स्नान करके जाके भगवान जी की पूजा करते हैं। मोदी जी ने कुंभ का स्नान किया, उसके बाद सबसे पहला काम क्या किया कि वहां जितने भी सफाई कर्मचारी थे सबको बुलाए, उनके पांव छुए, उनके पांव धुले। सोचिए कैसे उनके पांव धुले गए। तो अपने आप में इससे बड़ा कुछ उदाहरण नहीं हो सकता। और मैं तो कहूंगा कि ये पूछते हैं कि राजनीतिक तौर पर कब समृद्ध करोगे, तो मैं आपसे 2 नाम लेता हूं। नाम तो बहुत है मनोज जी, 2 ही नाम लेता हूं, डिबेट में समय कम मिलेगा। रामनाथ कोविंद जी क्या थे? एक ऐसे दलित परिवार से आने वाले व्यक्ति जिनके ना पिताजी का नाम किसी को पता था, न परिवार का नाम पता था, देश के राष्ट्रपति हुए। और द्रौपदी मुर्मू जी कौन थी? द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी परिवार से आने वाली, वनवासी परिवार से आने वाली राष्ट्रपति। और नरेंद्र मोदी अपने आप में बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है गरीबों का, दलितों का, वंचितों का और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों का। मनोज यादव,
बिल्कुल। देखिए पद्मजा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिसको चाहे उसको बुला लेंगे। अब वो शंकराचार्य को नहीं बुलाए तो कोई ना कोई तो काम करना ही था, कुछ ना कुछ तो अगले दिन डिबेट के लिए उनको मटेरियल देना ही था। उन्होंने तो शाहनवाज हुसैन को भी बुला लिया था, उन्होंने तो पाकिस्तान के ISI को भी बुला लिया था और हमारी आर्मी सेंटर पे बुला लिया था। तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। लेकिन आर्थिक रूप से देश सशक्त नहीं हुआ। आपने कहा कि कितने सिलेंडर रिफिल हो रहे हैं, उनको आंकड़ा सुना दो ना, मेरी भी आत्मा को संतुष्टि मिल जाए। लेकिन आप आंकड़ा नहीं बता पाओगे, बांटे हुए तो बता दोगे, लेकिन रिफिलिंग के आंकड़े आपके पास नहीं। क्यों? क्योंकि 1100 रुपए का सिलेंडर आम आदमी के बस की बात नहीं थी, अब 1000 का कर दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 100 रुपए से। लेकिन इतना तय है कि इस देश को महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से कल नंगा नाच हुआ है, मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह पे गुंडाई हुई है, वो स्पष्ट करता है कि आप रियल में दंगाई और गुंडे हो और दूसरों को बदनाम करते हो और खुद दंगा करते हो। इसी लखनऊ के नरही पे गाली वाले गाने चल रहे थे लखनऊ हजरतगंज में। पद्मजा जी, शर्म आती है मुझे कि I hope arrests are made in that case. I hope arrests are made in that case because that is definitely not the message of the Pran Pratishtha. But as it happens, as a coincidence, we have Sanjay Jha, originally from Bihar, and Manoj Yadav from Uttar Pradesh sitting right now. Representation apparently doesn't matter, says Manoj Yadav, Sanjay Jha, because कौन सी बड़ी बात कर दी, कौन सी बड़ी बात कर दी if everyone was represented in Pran Pratishtha, कौन सी बड़ी बात कर दी if Karpuri Thakur gets Bharat Ratna? पद्मजा, लेट मी टेल यू कि देखिए, अंत में जनता जो है ना, भारत की जनता, वो बहुत ही जागरूक और समझदार है। भारत की जनता ये समझ रही है कि हमारे देश में, हमारी जिंदगी में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। अदानी जी का शायद, उनकी तो बहुत तरक्की हुई, वो सब जानते हैं, लेकिन जनता ये भी जानती है कि यहाँ हमारे जो ये बड़े दिग्गज नेता लोग जो है ना, जो भाषण और प्रवचन देने में बिल्कुल माहिर है, वो हमारे लिए उन्होंने क्या किया। मैं आज भी आपके सामने पूर्वानुमान करना चाहूंगा, भविष्यवाणी करना चाहूंगा कि भाजपा बहुत ही घबराई हुई है, क्योंकि जब ये चुनाव आएंगे, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, मुद्दे हैं किस तरह से आपने हमारे प्रजातंत्र में लोगों को डरा के आपने रखा है, कैसे आपने सांप्रदायिक तापमान बढ़ाया है, कैसे आपने युवाओं को बेरोजगार रखा है, कैसे गरीब हुआ है। आप जानते हैं त्रिपाठी जी, आप बहुत आंकड़ों के बारे में बता रहे थे, आप गलत आदमी के साथ टक्कर लिए हैं। आप जानते हैं, यदि आप लोग भारत के 56% लोगों को आप 5 किलो आप उनको गेहूं देते हैं, तो आप कहते हैं कि भारत का बहुत तरक्की हो गया। कितने गरीब है हमारे देश में? UNDP ने कहा है 230 मिलियन लोग हमारे देश में गरीब हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी। Okay, I'll give right to respond, but only 30 seconds. Shalabh Tripathi, 30 seconds only. आपने क्या किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देश की जनता मैच्योर हुई है पद्मजा जी, और 2014 के बाद देश के गद्दारों को, देश के बेईमानों को, देश के भ्रष्टाचारियों की दुकान बंद करके ऐसा भेजा है कि अमेठी से भाग के वायनाड जाना पड़ा, और वायनाड के बाद अब ननिहाल जाना पड़ेगा। देश की जनता मैच्योर हुई है। आप कहते हैं भ्रष्टाचार, रावत वाड्रा कौन है, प्रियंका वाड्रा कौन है जिनके ऊपर इस प्रकार के आरोप हैं? Okay, this is the best point, because I think this is the only point on which everyone is unanimous कि हाँ, देश की जनता बहुत ही ज्यादा मैच्योर है। From all that they were told कि राम मंदिर से क्या ही हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा, जमीन फट जाएगी। 3 lakh people turned up today. All of India watched and celebrated yesterday. People know exactly what they should believe and what they are as a country. Let's leave it to their wisdom. Thanks very much, all gentlemen, for joining me.